اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع عالمی سطح پہ انتہائی اہم ہے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے روس اور چین کی، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں اسلامی ممالک کو، جس کو گریٹر اسرائیل بنا کے شامل کیا جا رہا ہے، ان کے وجود کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے بچایا جائے، ان کو بچانے کا مکمل پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو ورنہ یہ روس اور چین بھی تو غیر مسلم ہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مدد پہنچی ہے، اور اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اور قطر اور سعودیہ اور قطر، سعودیہ اور اردن، یہ جو غدار ملک تھے نا، اسرائیل کے چمچے بنے ہوئے تھے، اب ان کا وجود بھی جب خطرے میں پڑا ہے تو تب جا کے ان کو عقل آئی ہے۔ اس پہ بات کروں گا، تفصیل سے بات کروں گا، اور پاکستان میں کس طریقے سے دھڑا دھڑ جو ضمانتیں مل رہی تھی 9 مئی کے مجرموں کو، ملک سے باہر ان کو بھگایا جا رہا تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا ہے کہ یہ سب غیر قانونی تھا۔ اس پہ بھی بات ہوگی، تو مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا ولاگ کو 15 منٹ سے اوپر نہ لے کے جاؤں، اسی میں ساری تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو اشتہارات چلتے ہیں ساتھ وہ بھی دیکھ لیا کریں، کیونکہ وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ 8-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور جو بھی ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور کمنٹس بھی لازمی دیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ تو سب سے پہلے اب آپ آ جائیں جناب کہ کل جسٹس یحییٰ آفریدی کی کورٹ میں کیس لگا ہے۔ یہ جو دھڑا دھڑ لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے نا 9 مئی کے دہشت گردوں کو ضمانتیں مل رہی تھی نا، اس پہ پنجاب گورنمنٹ گئی جناب سپریم کورٹ میں اپیل لے کے کہ جناب یہ ضمانتیں جو دی جا رہی ہیں نا، یہ غلط دی جا رہی ہیں، یہ ڈالر لے کے دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈالر، ظاہر ہے ایک بندہ شہباز گل اگر ECL میں نام تھا، اس کا ECL سے نام نکلوا کے باہر اس کو بھگا دیا گیا، تو 2 کروڑ روپیہ اس جج نے لیا تھا۔ میں تو کسی سے، ان کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ویسے بھی 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ حق سچ دکھاؤں گا جو بھی ہوگا، چاہے وہ جرنیل کے خلاف ہو، چاہے وہ وزیر اعظم کے خلاف ہو، چاہے وہ صدر کے خلاف ہو، چاہے وہ عمران کے خلاف ہو، یا چاہے وہ کسی جج کے خلاف ہو، یا کسی وکیل کے خلاف ہو، یا کسی عام بندے کے خلاف۔ جو بھی غلط کام کرے گا نا، اچھے صحافی کا کام ہے اس کی اچھائی اور برائی دونوں عوام کے سامنے لانا، اس کی اصل شکل عوام کو دکھانا، تاکہ وہ سنبھلے۔ لیکن
मैं अब क्या कहूँ जी, पाकिस्तान की क्या कि पूरी दुनिया के मुसलमान इतने जाहिल हो गए हुए हैं, उजड़ हो गए हुए हैं कि देखें ये आलमी ताकतों के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। आलमी ताकतों के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए तुर्की में अफरा तफरी फैला रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात करवा रहे हैं। और किस तरीके से देखें अब ये किया गया है कि अच्छा, एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मीटिंग होने वाली है बीजिंग में। रूस का सदर आ रहा है चीन के दौरे पे, और पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पे हैं क्योंकि दो आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब अमेरिका गया क्योंकि अब रूस भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है ना, रूस की भी सुपर पावर नहीं रही है। इस वक्त का सुपर पावर अगर कोई है तो वो चीन है। इससे पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए, फौरन उसके साथ दिफाई मायदा कर लेना चाहिए और उसको अड्डे दे देने चाहिए ताकि यहाँ से वो इंडिया को निशाने इबरत बनाए। हमें उसने क्या नुकसान देना है, हमारा तो वैसे भी वो सबसे काबिल एतमाद काबिल भरोसा दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो अब आप देखें जनाब किस तरीके से ये किया गया है। इन दोनों की मीटिंग हो रही है, इन दोनों का दरमियान इजलास हो रहा है। किस मौजू पे हो रहा है? इस मौजू पे हो रहा है कि ट्रंप और इसराइल को कैसे रोका जाए। क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक अगर जायल आ जाए ना, कुर्सी पे बैठ जाए तो वो मुल्क को तबाह कर देता है। अब देखें जहालत से भरा हुआ बैठा है ना, उसने मुल्क की मैशत को क्या पूरे वर्ल्ड की मैशत का बेड़ा घर करके रख दिया है। तो उसके बाद उसका ग्रेटर इसराइल बनाने का प्रोग्राम है। यहूदी इसको इसी मकसद के लिए लाए हैं। उसमें उन्होंने मुसलमान ममालिक को सफ़ा हस्ती से मिटाना है और बिस्मिल्लाह उन्होंने गज़ा से कर दी हुई है। गज़ा में लोगों को बचाने के लिए अब दरमियान में अल्लाह की तरफ से आगे हैं रूस, चीन और पाकिस्तान। ये तीनों अब मिल के दिफा करेंगे इस तमाम इस्लामी मुमालिक का, तुर्की समेत, क्योंकि तुर्की भी इस वक्त उनके निशाने पे है। और तुर्की में जो है ना वो किया जाएगा कि किस तरीके से इसको तबाह किया जाए, और उसकी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। वहाँ पे वो किया जा चुका है, आगाज़ किया जा चुका है। वहाँ पे भी मुजाहरे शुरू हो गए हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में भी इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, यहाँ पे भी मुजाहरे शुरू हो गए हुए हैं। ये अख्तर मैंगल जैसे गद्दार, ये मारंग लांगू जैसे गद्दार, और ये जो क्या नाम है वो जो चादर लपेटता है, क्या नाम है उसका, जिसको इमरान खान कल तक गालियां देता था, आज वो इमरान को उसने बाप बना लिया हुआ है। ये ऐसे गलीज गंदे लोग हैं ना, गद्दार, ये पैसे के लिए अपनी माँ का भी सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। ये पूरी जिंदगी लूट के खाते रहे हैं। अब देखिए इनको क्या मसला है, इनको, ये तो खरबों के मालिक हैं, ये खरबों के मालिक है, इनको क्या मसला है कि ये क्या नाम है, इनके कौन से हकूक मसलत हकूक सलब हुए हैं जो ये निकल आए हैं। ये तो पहले से ही खरबों के मालिक हैं, लूट के खा गए हैं, तमाम ठेके इनके पास हैं, तमाम अवाम का पैसा लूट के ये खा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं ना, सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को मिलते हैं, वो ये लूट के खा रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह सबसे पहले मजबूत किया जाएगा फ़लस्तीन की तंजीमों को जो वहाँ पे लड़ रही हैं, उनको असला पाकिस्तान से भी जाएगा, रूस से भी जाएगा, चीन से भी जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। और उसके बाद अपने बहरी बेड़े लेके जाएंगे रूस भी और चीन भी, वहाँ के समुद्रों में खड़े करेंगे। और गोसियों को, यमन को मजबूत किया जाएगा, यमन को बेसाब असला दिया जाएगा। जनूबी कोरिया भी उसकी हिमायत के लिए पहुंच गया है, वो भी मिसाइल वगैरह दे रहा है। देख ले, जब अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है ना तो हर तरफ से फिर
गैबी इमदाद आना शुरू हो जाती है। ये उन फ़लस्तीनियों के लिए गैबी इमदाद है। अब सऊदीया को शर्म से डूब मरना चाहिए, कतर को। हम तो खैर किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हम चारों तरफ से खुद अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। हमारे अंदर गद्दार मौजूद है, आलमी ताकतों के एजेंट मौजूद है, टाउट मौजूद है। हम उनसे ही निबड़ पाए तो बहुत बड़ी बात है। हम इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, असला वगैरह उनको दे सकते हैं। ईरान को पाकिस्तान ने जहाज़ देने की वो उसने रिक्वेस्ट की थी, ईरान ने पाकिस्तान से JF थंडर 70 जहाज़ों की, तो वो मंजूरी अल्लाह ने किया कि हो गई है। इंशाल्लाह अनकरीब जहाज़ ये पहुंच जाएंगे ईरान। ईरान को मजबूत किया जाएगा, यमन को मजबूत किया जाएगा, हौसियों को मजबूत किया जाएगा, और फ़लस्तीन के उन तंजीमों को मजबूत किया जाएगा जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत किया जाएगा यमन को। देख लें, यमन एक छोटा सा मुल्क था, सऊदीया को शर्म और गैरत आनी चाहिए कि किस तरीके से अल्लाह ने उसकी इमदाद किया, और उसने ना को चने चुबवा दिए हैं अमेरिका को। अमेरिका के उसने वो बेरी बेड़े तबाह कर दिए हैं ना, वो जहाज के समुद्र में गर्क कर दिए हैं कि जिन पे सोच भी कोई नहीं सकता था कि ये भी कभी गर्क हो सकते हैं। नाकाबिले तस्खीर उनको बनाया गया था। जदीद तरीन सिस्टम उनमें लगे हुए थे। उनकी तरफ कोई मिसाइल या टारपेडो आता ना तो वो रास्ते में ही उसको तबाह कर देते थे। उसमें ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ था। सब कुछ होने के बावजूद देखें वो जो ऊपर जात पाक बैठी हुई है ना, उसने कैसा कर्म किया कि उसके इंतहाई 3 अहम जहाज जो बड़े जहाज थे ना, वो गर्क हो चुके हैं, समुद्र की तह में दफन हो चुके हैं हमेशा के लिए। किसके हाथों? एक चिड़िया के हाथों वो बाज मरवा सकता है, अबाबील के हाथों वो इतने बड़े लश्कर को तबाह कर सकता है। तो ये भी अबाबील ही समझ लें। यमन छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन उसने नाको चने चबवा दिए हैं अमेरिका को भी और इसराइल को भी। अब अमेरिका कह रहा है, पैगामात भेज रहा है अपने चमचों के थ्रू के हमारे साथ मायदा कर ले, इसराइल को ना छेड़े और साइड पे हो जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा और उसको बेहिसाब डॉलर भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा तुम अपने डॉलर अपने पीछे ले लो, हमें नहीं तुम्हारे डॉलरों की ज़रूरत है। हमने अगर एक वक्त की खानी है तो हम 1-2 वक्त की जहाँ पे खानी है ना, वहाँ एक वक्त की खा लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करेंगे, अपनी गैरत पे समझौता नहीं करेंगे, और फ़लस्तीनियों का और आलम इस्लाम के ममालिक का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होता है गैरतमंद, गैरत कौम होती है जो। और ये जो सऊदीया में बैठे हुए हैं ना टाउट, ये तो डाकू हैं, चोर हैं। ये तो सल्तनत उस्मानिया को तबाह करके, इनका दादा शाह सऊद सबसे बड़ा डाकू था, वो आजियों को भी कत्ल कर देता था। तो उनसे बचने के लिए फिर सल्तनत उस्मानिया तुर्की ने इक़्तिदार इनको दिया था। ये कोई वो नहीं है कि खादमे अरमेन बने हुए नहीं है, ये डाकू हैं। ये इनका काम ही यही है कि मुल्क को तबाह करना, आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनना। ये अगर इराक तबाह हुआ है तो सऊदीया के साथ शामिल होकर तबाह करवाया है। शाम तबाह हुआ है तो सऊदीया बीच में शामिल था। वैसे तुर्की भी शामिल था, तुर्की भी कोई इतना नेक नहीं है जितना हमने उसको बनाया हुआ है। वो ये सब अपने मफादात के लिए होते हैं, दूसरों के लिए कभी नहीं करते हैं। दूसरों को हमेशा, ये दुनिया का कानून भी है कि कमज़ोर को हमेशा ताकतवर हड़प कर लेता है। तो बाकी देखें, अब इंशाल्लाह इसमें फैसला हो जाएगा। ये अनकरीब ये मीटिंग होने वाली है, इसी महीने में 15 को होगी या 16 को होगी, हो जाएगी, और उसके बाद फैसला हो जाएगा और भरपूर तरीके से दिफा करेंगे ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ मिलके और आलम इस्लाम के तमाम ममालिक का। देखें किस तरीके से अल्लाह ने गैर मुसलमों के हाथों उनको बचाने का तैयार किया। तो क्या सऊदीया नहीं बचा सकता था? सऊदीया के पास जितनी पैसा है, जितनी पावर है, जितने इख्तियारात हैं, ये एक आलम इस्लाम के जो इमाम काबा है या मस्जिद नबी का इमाम है, उनके थ्रू सिर्फ एक
فتویٰ جاری کروا دیں کہ بھائی جہاد واجب ہو گیا ہے، یقین جانیے پوری دنیا سے لوگ جا کے اسرائیل کے خلاف لڑیں اور اسرائیل دنوں میں تباہ ہو جائے۔ لیکن یہ مردود اس کے ساتھ سعودیہ کا یہ بادشاہ ملا ہوا ہے، دجال کا مائتی ہے، یہ اس کی بیوی ایک امریکن ہے، ایک یودن ہے، یہ اندر سے یہ بھی سارے عمران کی طرح ہی ہیں، یہودیوں کے پس پردہ ایجنٹ ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے حافظ سید عاصم منیر کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔